اور خبر تفصیل سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے کہا کہ کشمیر میں اقلیتوں پر ہو رہے حملوں کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کشمیری دوسرے کشمیری کو مار رہا ہے۔ بخاری نے کہا کہ یہ سب تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک نہ ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ وہ سانبا کے بری برہمنہ میں OBC کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ پارٹی کے کئی دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ اس کے خلاف انقلاب میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب تک نہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ رک نہیں سکتا ہے۔ فوج خالی روک نہیں سکتی ہے، پولیس خالی روک نہیں سکتی ہے، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ دس از ناٹ اے کوشچن یہ مائنورٹی کا مرا یا میجورٹی کا مرا ہمارا، اور مارا بھی ہمارے آدمی۔ یہ نہیں مارنے والا بھی کشمیری ہے، مرنے والا بھی ٹھیک ہے وہ راجپوت کمیونٹی سے تھا لیکن تھا تو کشمیری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل اس کے جنازے میں کشمیری ہی تھے، کوئی اور تو نہیں تھا نا۔ ہم لوگوں کو سامنے آنے پڑے گا۔ میں تو اپنے یوتھ سے بھی کہتا ہوں کب تک چلے گا یہ سمجھ لو، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جو یہ کروا رہا ہے۔ کلنگز ایک ایسا عنصر ہے جو یہاں پچھلے 72 سال سے رہا ہے۔ کبھی یہ ایکٹیو زیادہ ہوتا ہے، کبھی یہ تھوڑا سا تھم جاتا ہے، لیکن جموں کشمیر کے لوگ اب ہوشیار ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جیسے جموں کشمیر کے لوگوں نے امن آج بحال کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ماس اپرائزنگ نہیں ہو رہی ہے، کہیں پتھراؤ نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب اس کا کریڈٹ لوگوں کو جا رہا ہے، لوگ ہی اس کو بھی ختم کریں گے۔ وزیراعظم کے جموں کشمیر کے مجوزہ دورے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں الطاف بخاری نے امید جتائی کہ وزیراعظم بڑھتی بے روزگاری، PHE ڈیلی ویجز جیسے مسائل پر بات کریں گے۔ امید ایک استاد سا ہوتا ہے، یو آر ہیپی کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے پرائم منسٹر کے دل کے بہت قریب ہے جموں کشمیر۔ وہ ہمارے یہ جو جیسے میں نے کہا ڈیلی ویجرز کا، OBC والوں کا، میں نے ڈیموکریٹک پروسیس کا کہا، اپنے یوتھ کے لیے کہا، تو یہ تو امید تو ہے ہی، اور اسی سے ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا مداوا پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر اور بھارت کی سرکار کے پاس ہی ہے، ہمارا مداوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھول جائیے کہ کوئی سوچے گا کہ ہمارا مداوا کہیں اور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا مداوا، ہماری دقتیں بھی سب دلی کی وجہ سے ہیں، اور مداوا بھی دلی کے پاس ہی ہے۔ راکھرت بمنا میں LCMA کی جانب سے انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ اس کو مقامی افراد نے ناانصافی سے تعبیر کیا۔ ایک مکان مالک کا کہنا ہے کہ جب ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں تو پھر انہدامی کارروائی کیوں کی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ جہاں انہدامی کارروائی کی گئی اسی کے ساتھ ایک اور مکان تعمیر کیا گیا ہے مگر نہیں گرایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لیکس اینڈ کنزرویشن اتھارٹی ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعمیر کرنے کے وقت محکمہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی نوٹس یا جانکاری کیوں نہیں دی گئی۔ انہوں نے LG انتظامیہ سے انصاف کی مانگ کی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جب ہمارے نمائندے نے LCMA دفتر جا کر پورا معاملہ جاننے کی کوشش کی تو وہاں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ AE موجود نہیں ہے۔ ان ملازموں کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ انہدامی کارروائی کیوں چلائی گئی۔ تمس دتک بنانے بہت میون مطلب مے کیا دن سٹور یوت بنانے کہین بہت ونان لوڈا والے مطلب مے دے مے کیا دل یہ ڈاکومنٹس یہ تم ڈاکومنٹس مے دی جناب مے سے کرو تھی جناب انصاف بہت لکن ونان سارے ونان مطلب آفیسر ونان بہت خاص کر گورنر صبس کر گزارش کر گورنر صبس مے سے کرو تھی انصاف مطلب امس باچر صبن مینت کرز کم محنت یوتا سڑک تراؤن یتس پہ بناؤ یوتا بناؤ پتہ کیا گئی واچر تمس کت کن اجازت تر پتہ ونس نہ چلو چھ بناون کی یا ژٕ بنوت الیگل ژٕ ژھٕن گراے کر بہ کی وونمت کورمت اس منگوک معافی دپک معافی دیو أسۍ معافی دِوان رات پزِ گورنمنٹ مڈل اسکول ٹینگجن یاریپورہ کلگام میں آج حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب دو اساتذہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس کی مقامی لوگوں نے نہ صرف مذمت کی بلکہ انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی۔ طلباء و طالبات کے مطابق اسکول کے ایک استاد نے بچوں سے اسکول اور بیت الخلاء کی صفائی کرنے کو کہا۔ وہاں موجود ایک استاد نے اس پر اعتراض جتایا۔
इसके बाद बहस और तकरार शुरू हुई जो हाथापाई में तब्दील हो गई। मकामी लोगों ने इस मामले पर इजहार अफसोस किया। महकमे तालीम कुलगाम ने इस मामले की मुनासिबत से न सिर्फ एक जांच कमेटी तश्कील दी है बल्कि उस्ताद को मुअत्तल किया गया है। सरन दोस्त मैं गस बर्दाश्त किया स्टूडेंटन ये सफाई करने सरस नालस थाप अन हज दिस वारिया चोब फलना लूट सारे शुरन बे मास्टरन अहन अज दुहाई कर इथे पे सफाई बाकी सन क्या गाँव सर ये गई आवै लड़ाई तिकाज ये दुहाई कर शुर सफाई सुबह कर सफाई प्रेल पे शुर कोर त्रे तुझे बे लड़क त्रे कर सफाई छल बाथरूम बे छल कुर्सी बे कर क्लास सफाई वहाँ पर लगता है कि दो टीचर्स के दरमियान में बच्चों की सफाई पर कुछ झगड़ा हुआ है और उस झगड़े से उन्होंने एक दूसरे से मारपीट भी की है। तो मैंने उनको सस्पेंड किया है और 2-3 दिन का टाइम दिया है कि इंक्वायरी कंप्लीट करें। हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे और जो भी हुआ है वहाँ पे टीचर्स के दरमियान में वो अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने बच्चों को किसी भी लेबर में जो है इन्वॉल्व नहीं करना है। अब जो भी टीचर ऐसा करते हैं वो वायलेशन करते हैं और ऐसे टीचर्स के खिलाफ डिपार्टमेंट जो होगा वो सख्त से सख्त जो होगा वो एक्शन लेगा। और नाज़रीन, श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो गया है, आप इफ्तार कर लें। और आगे बढ़ेंगे। सीसीटीवी लगाने के हुक्म पर कश्मीर में दुकानदार और ताजिर मकमसे का शिकार हो चुके हैं। इस ज़मन में दी गई डेडलाइन 19 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि वादी की खस्ता हाल मईशत के चलते वो पहले ही परेशान हैं और उन पर यह ज़्यादा बोझ आयद किया जा चुका है। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों वादी में हुए टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद इंतजामिया की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज असद ने तमाम कारोबारी इदारों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को लाजमी करार देने के अहकामात 5 अप्रैल को जारी किए थे। हुक्मनामे में कहा गया है कि मसरूफ मकामात पर दुकानदारों और दीगर कारोबारी इदारों को 14 दिनों के अंदर अंदर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ऐसे कैमरों को वाईफाई से मरबूत करने की शर्त रखी गई है। ऐसे ताजिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। कई दुकानदार अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा चुके हैं। कई दुकानदार अब भी कैमरे लगाने में जुटे हुए हैं। ताहम इन दुकानदारों का कहना है कि इन महंगे आलात की तनसीब के अखराजात में से कुछ हिस्सा तो हुकूमत को अदा करना चाहिए। गुड फॉर अस, क्योंकि एक चीज़ चोरियां भी होती थी और सेफ्टी अच्छा है। और गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया हमारे लिए थोड़ा महंगा है इस वक्त तो आपको पता है, बट हमारे लिए अच्छा है। हम भी देख सकते हैं घर पे भी क्या हो रहा है, कैसे मूविंग हो रही है। इट इज़ अ गुड बेनिफिट फॉर अस ऑल्सो। एंड प्लस अब गवर्नमेंट बोल रहा है लगाने के लिए तो वो तो लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। ये ऑर्डर खुद निकालते हैं और दुकानदार को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं और खुद ऑर्डर निकालते हैं, खुद डेट फिक्स करते हैं। और दुकानदार इस टाइम दुकानदारी हालात जानते हैं कि कैसे बैठे हुए हैं वो। और ऊपर से ये खर्चा, ये तो अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी, गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। नहीं है तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जो हम इसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं। कंपलसरी है ये अपने और भी हमको ज़रूरी है और सिक्योरिटी उसके लिए भी जरूरी है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाने के ये अहकाम 2 महीनों तक नाफिज रहेंगे। अगर इस बीच सरकारी इंतजामिया की तरफ से इसमें रद्दोबदल हो जाए तो और बात है। दुकानदारों से कहा गया है कि वो इन कैमरों में कैद हो जाने वाली किसी भी मशकूक हरकत की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशनों को दे। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस के मांगने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसे लाजमी तौर पर फराहम करनी होगी। बैंकों, एटीएम्स, होटलों, रेस्तोरानों, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग मॉल्स, मजहबी मकामात और बस स्टैंड के मुंतजिमीन से कहा गया है कि वो अपनी तनसीबात और इदारों के बैरूनी हिस्सों पर भी सीसीटीवी लगाएं।
ताजिरों की कई तंजीमों ने इस हुक्मनामे की मुखालिफत की है और इसे पहले से मुश्किलात का शिकार ताजिरों पर इजाफी माली बोझ करार दिया है। लोगों ने सवाल किया है कि जब दिल्ली की हुकूमत सीसीटीवी कैमरे लगाने का खर्चा लोगों को दे सकती है तो जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया पीछे क्यों हट रहा है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में लगाया है, वो गवर्नमेंट ने ही सारा कुछ लगाया है। इसी तरह हमने इनको अपने जो उज़रात थे वो पेश किए, चाहे पुलिस के पास किए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पास किए, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये गौर करने पे राज़ी हो रही है। पहले हमें ऐसा लगा था कि ये कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये का मसला है, लेकिन जो आर्डर आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसमें जो उसकी कंडीशंस है, जिस तरह से उसको लगाने का तरीक़ाकार है, वो जो उनको चाहिए, उसमें तकरीबन एक तो कैमरा है, एक तो वाईफाई है, एक तो पावर सप्लाई है, दूसरा एक मॉनिटर भी चाहिए उसके लिए, हार्ड डिस्क भी, बाकी जितने भी लवाजमात हैं, तकरीबन एक बंदे का खर्चा तकरीबन 70,000 रुपये का हो जाता है। अगर उसमें पावर सप्लाई का भी 24 घंटे का सोचना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा फिर बढ़ जाता है। वो एक आम ताजर, एक आम दुकानदार इस वक्त जब उसकी इक्तिसादी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, घर के खर्चे हैं, उसके मुलाजिम के खर्चे हैं, उसके किराए के खर्चे हैं, बाकी उसके टैक्सेस हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है, इस पे नजर सानी की ज़रूरत है। रमजानुल मुबारक के चलते और आने वाली ईद के पेश नज़र ताजिरों और दुकानदारों ने हुक्काम से दरखास्त की है कि वो सीसीटीवी कैमरे लगाने की आखिरी तारीख में तौसी करें। इस सिलसिले में मुतादिद तिजारती तंजीमें और यूनियंस जिले इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती के साथ साथ ज़ायक़ेदार मेवाजात और मुख्तलिफ फूलों की पैदावार के लिए भी जानी जाती है। अब तालीम याफ्ता नौजवान भी फूलबानी शोबे से मुंसलिक होकर अपने और दूसरों के लिए बेहतर रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। पेश है बिलाल खान की ये रिपोर्ट। इस नर्सरी में काम कर रही नुसरत मजीद नामी ये नौजवान कारोबारी बरसों से फूलबानी सनत से जुड़ी है। जिला पुलवामा के गडूरा इलाके की नुसरत ने अपनी 2 बहनों के साथ जदीद तर्ज की फूलों की ये नर्सरी कायम की है। नुसरत का ये यूनिट जिले में कामयाब तरीन यूनिट्स में शुमार होता है। महकमे फूलबानी की मदद से इन्होंने 15 साल कबल नर्सरी कायम की थी। इससे न सिर्फ इन्हें अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम कर रही हैं। गोडनेथ ओस नु त्यूता अस तगान यस सत करुन किहिन न पत कोर वार वार स्टार्ट मतलब शुरू कित कन छ अस मतलब शुरू करुन पत कोर अस यमन फ्लोरिकल्चर वालेन सतन कांटेक्ट तिम आय योर तिमो हो कि मतलब अस कित कन पज मतलब संभालुन ये कित कन छ स्टार्ट करुन। इंशाल्लाह खुदाय सवाल छ वन अस पान हेकान वन सोरे ब्योल वबदायत सोरे मतलब यम त कह त वैरायटी छ अस मतलब नोम पोश कुल च वैरायटी यम छ हेकान व पान घर इस मतलब बनायत। बे मजीद कि हेकान मतलब वनकस यम ति एरिया ये तिमन ጸपर पानी सप्लाई करा। नर्सरी के लिए हमारा कंपोनेंट है, उसमें हम 7.5 लाख रुपए देते हैं हम 1 हेक्टर के लिए, तो राउंड अबाउट हमारा 37,500 रुपये 1 कनाल के लिए। उसमें हम वो मटेरियल्स वगैरह लगाते हैं, हम उनको इंसेंटिव पे करते हैं, तो उसके बाद माशाल्लाह वो अच्छा खासा जो अपना उनका बिजनेस है वो चल जाता है। उससे एक्स्ट्रा जो है लेबर भी वो जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को एंगेज करके उनको जो है ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड। नुसरत की तरह ही पुलवामा में 200 से ज़ायद तालीम याफ्ता अफराद फूलबानी सनत से जुड़ गए हैं। पुलवामा में अब जदीद तर्ज की नर्सरियां कायम की गई हैं। फूलों का कारोबार भी काफ़ी फरोग पा रहा है। महकमे बागवानी के अफसरान का कहना है कि फूलों की काश्त से लेकर मार्केटिंग तक किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। मजूर बचान हर कम बचान
मगर ये इंसान कर नर्सरी वालिस बन ोट कन तम आर्जिनल माल कुन कम मूजूबन क्या तमिस दाग त्रित गर यनस नर्सरी पे। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, MIDH है, RKVY है या आत्मा है, उसके अलावा जो हमें स्टेट कैपेक्स में आता है इंसेंटिव पर्पस के लिए, सब्सिडी फार्मर्स के लिए। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे 218 रजिस्टर्ड ग्रोवर हैं टिल डेट, जिसमें से हमारे 20 जो हैं वो एक्टिव ग्रोवर्स हैं, तो जो मतलब अच्छा खासा बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहे हैं। पुलवामा में बागवानी और ज़रई शोबे के साथ साथ अब फूलबानी सनत को भी काफ़ी फ़रोग मिल रहा है। इस सनत को मज़ीद फ़रोग मिलने से बेरोज़गारी को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। करगिल में खुबानी के दरख्तों पर फूल खिल चुके हैं। ऐसे में आर्यन बेल्ट के देही इलाके गरकून में त्यौहार शुरू हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने एक रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलाम मोहिउद्दीन वानी मेहमान खुसूसी थे। AD टूरिज्म आगा सैयद ताहा, कौमी और बैनुल-अक़वामी सय्याह, ब्लॉगर्स, गांव के मुअज़्ज़िज़ अराकीन, सरपंच, लोक फनकार और मकामी लोग मौजूद थे। ADC ने मौसम गर्मा के आगाज़ पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराने पर महकमे सियाहत को मुबारकबाद दी। ADC ने कहा कि गरकून और आस पास के दही इलाकों में बड़े मयार की खुबानी पैदा होती है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल दुबई को कामयाब तरीके से खुबानी बरामद करना एक कारनामा है। उन्होंने इंतज़ामिया की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़ की। संजक में 16 जबकि कारचू में 19 अप्रैल तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। गेस्ट जो टूरिस्ट बाहर से यहाँ पे तशरीफ आए हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे एम्बेसडर्स बन के अलग अलग जगह पे जाके इस इलाके का प्रमोट करें, इन फेस्टिवल्स के बारे में लोगों को बताएं, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, तो ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए। महकमा ज़राअत के इन्फोर्समेंट विंग और पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन शोपियां ने कहा कि जनूबी कश्मीर बिलखुसूस ज़िला शोपियां के बाज़ारों में किसी किस्म की नकली कीड़े मार दवाएं नहीं बेची जा रही हैं। कुछ मफाद परस्त अफवाहें फैला रहे हैं। महकमा ज़राअत ने बताया कि वो शिकायत मिलते ही फौरी कार्रवाई कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से बर वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सदर पेस्टिसाइड एसोसिएशन शब्बीर अहमद ने कहा कि उन्होंने मजमूई तौर पर डुप्लिकेट कीड़े मार दवाओं के मसले पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि गलत लोगों के चुंगल से सनत को बचाने का उन्होंने अहद किया है। हमने एक कमिटमेंट रखी है कि हम आपको सही चीज देने में कोई लतलहर से काम नहीं लेंगे। उसका सबूत हमने परसों दिया है, जब इन लोगों ने अपने आप को अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने एक ऐसा कारनामा दिखाया जो मेरे ख्याल में आज तक इस हिस्ट्री में नहीं मिलता है कि कितना माल इन्होंने पकड़ा है और क्या क्या वहां पकड़ा है। उसके लिए हम खासकर यहाँ के कश्मीर के डायरेक्टर जनाब चौधरी इकबाल साहब के बहुत मशहूर है, जिन्होंने इनको बराबर उनकी क़यादत में इन लोगों ने इस इंडस्ट्री को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने में कोई कसर। पूरा साउथ कश्मीर का टीम हमने एक साथ मुतहरिक होकर हमने ट्रैप लगाया और हमने कंक्लूडली हम पहुंच गए। जो मेन कुलप्रेट था पुलवामा में शाहीन एंटरप्राइज, उसके पास हम पहुंच गए तो हमने उसको छापा मारा। वो इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि हम फार्मिंग कम्युनिटी को आपके माध्यम से हम इनको गुजारिश करते हैं कि अगर कहीं पे और भी पोषक ऐसा होगा जिसको अंदर से जब बोतल खोलते हैं तो उसको बिल्कुल पानी जैसा निकलता है, अगर ऐसी कोई शिकायत है या अगर किसी ने यूज़ भी किया होगा तो आपके माध्यम से हम उनको इत्तला करते हैं कि वो हमारे नोटिस में लाए। जिस डीलर ने वो दिया होगा हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट डिवीजन डोडा के दौरे में ट्रेनीज के साथ बातचीत की। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उन्होंने स्टेक होल्डर्स से कहा कि जंगलों से जायज़ फ़ायदा उठाने के लिए वो आगे आएँ। कई लोगों की रोजी रोटी के वसाइल जंगलों से जुटाए जाते हैं। दरअसल मोहित गिरा चिनाब सर्कल के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने महकमे की स्कीम के तहत कंप्यूटर सीखने, कटिंग, सिलाई करने वाली लड़कियों और लड़कों से भी बातचीत की। को मजबूत करने के लिए है। जो आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज जो एक आज सीरियस इशू है, उसमें फॉरेस्ट को कैसे हम क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करें और उसकी एक्सटेंट को बढ़ाएं, उसमें ये ग्रीन इंडिया मिशन का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है लाइवलीहुड
का जो है ऑप्शन क्रिएट करना और लोगों को लाइवलीहुड देना, तो उसमें उस कंपोनेंट के तहत जो है यहाँ पर हम कई तरह के लाइवलीहुड जो है लोगों को दे सकते हैं। जंगलात में आग लग जाने के बढ़ते हुए वाकयात पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने कहा कि महकमा पूरी तरह तैयार है। खुश्क मौसम जंगलात में आग लगने का सबब बन रहा है। उनके मुताबिक हालिया आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पता है कि ड्राई पीरियड हमारा बढ़ रहा है, जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश हुई नहीं है, और ड्राई पीरियड बढ़ने से और कहीं कहीं लोगों की थोड़ी बड़ी लापरवाही हो जाती है, कहीं जली आग रह जाती है या कहीं घास के लिए लोग आग जला देते हैं, तो कभी स्टेट लैंड से कभी प्राइवेट लैंड से भी वो आग जो है फॉरेस्ट की तरफ पहुंचती है। और ये वैसे भी हमारा जो है सीज़न, इसमें आग के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो हमारा जो डिपार्टमेंट के जो हमारे स्टाफ हैं और जो हमारे जॉइंट कंट्रोल रूम्स हैं, जो फायर कंट्रोल रूम्स हैं, ये बड़े एक्टिव रहते हैं इन दिनों। और ये सारा हमारा स्टाफ जो है जगह जगह जो है इसकी पेट्रोलिंग करता है, और जहाँ जहाँ आग की खबरें आती हैं वहाँ फटाफट एक्शन होता है, और ज़्यादातर आग जो है वो हमारी जो ग्राउंड लेवल पे ही महदूद रह के उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। वक्त एक और ब्रेक की बात, फिर लौटेंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग में मौजूद गंडोला की सवारी के लिए भी काफी रश देखा जा रहा है। गुलमर्ग में गंडोला की सवारी के लिए सुबह सवेरे से ही सयाह लंबी लंबी कतारों में खड़े देखे जा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग में गंडोला की सवारी के बगैर उनकी सैर नामुकम्मल है। उधर गुलमर्ग गंडोला ने ऑनलाइन टिकट सिस्टम भी शुरू किया है, इससे सयाहों को सहूलत फराहम हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे शहर में बहुत गर्मी थी और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। देखिए आप, यहाँ पे इतनी हरियाली है और सर्दी की तो इतना अच्छा है जिसका हम बता नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे को हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सबको आना चाहिए, कश्मीर को विजिट करिए, देखिए कैसा है कश्मीर। और गुलमर्ग सर एक मिनी स्विट्जरलैंड है, मतलब जन्नत है, बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आ गया है। और मतलब मैं सबको बोलूँगा हिंदुस्तान में कि एक बार कश्मीर तो आए जीवन के अंदर। बहुत ही अच्छी जगह है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, हरियाली है, लोग बहुत ही बढ़िया है। जो अपन सोचते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आएँ और एक बार ज़रूर आके विज़िट करें। थैंक यू। ताजिर है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, वो अपना कारोबार चला रहे हैं। तो गुलमर्ग गंडोला में हमने इस बार फैसिलिटी के लिए ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो अपनी टिकट्स जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पे लाइन में रहना पड़े, डायरेक्टली वो गंडोला में बैठ के अपनी राइड को एंजॉय कर पाए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने गुलमर्ग का दौरा किया। उनके हमरा इंतजामिया के कई आला अफसरान भी थे। गुलमर्ग पहुंचने पर जिला इंतजामिया बारामूला ने उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर ने गुलमर्ग में अफसरान से मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने गुलमर्ग गंडोला की भी सवारी की। जश्न गुरेज के दूसरे रोज फौज और महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम जारी 5 रोज़ा एक्सप्लोर गुरेज पहल के एक हिस्से के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 8 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अंगाई कोट, जुर्नियाल और शेखपुरा गांव का दौरा किया। तुलैल वादी के कुदरती हुस्न का नज़ारा करने के लिए ये दौरा किया गया। इस इक़दाम का मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना, गुरेज में सयाहों की आमद में इजाफा और इलाके में अमन व सुकून के साथ साथ इलाके की तरक्की को भी फ़रोग़ देना है। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड आई कैन से कि गाइस, अगर आप कश्मीर आते हैं तो प्लीज आप गुरेज विजिट करें, बिकॉज गुरेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू कैन सी द ब्यूटी ओवर हियर। ब्यूटी इज वेरी लाइक यू कैन सी कि सही में जन्नत अगर है वो कश्मीर में है, द गुरेज इज हियर, यू कैन विजिट हियर। It's such an offbeat location as compared to all the other places in Kashmir, and I really enjoyed Gurez Valley. So I'm looking forward to all the activities planned by the Indian Army, and I think it's going to be great. Come to Kashmir and not seen Gurez, then you have missed a lot.
So if you are coming here to Kashmir, do check out this untouched of Beat Valley. So please watch out our stories. You'll see enough of Gurez from our lens. हम टूरिस्ट को दावत दे रहे हैं गुरेज में, और बाकी लोगों को भी यहाँ आए, यहाँ लुत्फ उठाए। गुरेज पीसफुल एरिया है। यहाँ पर कमांडर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है हम, जिन्होंने काफ़ी कोशिशों से यहाँ पर हमारा ये गुरेज में टूरिज्म को बढ़ावा देने का ये किया। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने सयाहों के लिए 2 लेवल ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम कायम किया है। डायरेक्टर सयाहत कश्मीर जी नीतू ने कहा कि इससे सयाहों को बेहतर सर्विस मिलेगी और उनकी मुश्किलात का मौका पर भी इजाला होगा। उन्होंने कहा कि तमाम फरीक़ैन को एतमाद में लिया गया है और बेहतर सर्विस फराहम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और इजाफी चार्जेस वसूल करने की शिकायत मिलने के बाद कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। किसी की शिकायत की सूरत में सयाह मकामी टूरिस्ट अफसर से राब्ता कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज हमारा काफ़ी अच्छा, जो हमारे टूरिस्ट जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रोफेशनली करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ज़ीरो ग्रीवेंस का जो है वो स्कोप रहे, जिसके चलते हमने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस किया है। हमारी 2 तरह की टीमें होंगी। एक सेंट्रल लेवल टीम हमारी होगी जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोग हैं जो कि रैंडमली चेक किया करेंगे कि क्या जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है क्या वो टूरिस्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल की होती है, प्लस वहाँ पे क्या इन ट्रांसपेरेंट वे में ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो रेट्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई किए हैं क्या वो रेट्स उसी हिसाब से जो है प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके चलते वो जो है अपनी रिपोर्ट दिया करेंगे और ऑन स्पॉट भी ग्रीवेंस रिडर्सल का जो है वो ये कर लेंगे। इसके अलावा हमने माइक्रो लेवल पे जा कर के डेस्टिनेशन वाइज भी जो है वो प्लान हमने बनाया हुआ है। जैसे हमारा गुलमर्ग में, पहलगाम में, या इसी से दुधपथरी है, सोनमर्ग है, वहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है। और लोकल लेवल पे भी जो है वहाँ हमने मैकेनिज्म यही रखा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हैं और जो बाकी टूरिस्ट को जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उस हवाले से उनकी ग्रीवेंसेस अगर कुछ हों वहाँ पे लोकल लेवल मैकेनिज्म अवेलेबल हो। सुपूर के तुजर शरीफ में बादशाह कोल किसी वक्त मीठे पानी का अहम जरिया और मछलियों की जाय अफजाइश हुआ करता था। लोगों के मुताबिक कभी वो इसका पानी पिया करते थे, लेकिन आज यही तालाब बदनुमा बन चुका है। तुजर शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाला ये तालाब 8 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ये कौल बनाने का कारनामा अंजाम दिया था। तुजर शरीफ गांव भी बहुत अहम तारीखी पस मंज़र रखता है। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सुल्तानुल आरिफीन महबूबुल आलम इसी गांव में पैदा हुए और परवरिश पाई थी। इतनी अहमियत के हामिल इलाके की तरक्की में नाकामी पर ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली को आसानी से समझा जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन रोज़ाना यहाँ पहुँचते हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग के उर्स के दौरान अक़ीदतमंदों की तादाद में बड़ा इजाफा हो जाता है। लोग और इंतज़ामिया तालाब की ये दुर्गत बना देने के ज़िम्मेदार हैं। अब गर्मियों में इस नहर में पानी जमा हो जाने से उससे ताफुन उठ रहा है। लोगों को राहत पहुँचाने के लिए जंगी खतूत पर इस आबी ज़ख़ीरे की अज़मत रफ्ता बहाल करने का मुतालबा किया गया है। भी होती थी, सब कुछ होता था और ये पानी हम घर के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कपड़े भी धोते थे और जो हमारे जानवर हैं वो भी पीते थे। लेकिन आज अगर उनको भी दिया जाएगा ना ये पानी तो वो भी मर जाएगी, तो हमारी ये बात ही नहीं है। तो इसमें जो भी हैं परिंदे हैं वगैरह वो सब, जो बतख है, जो बाकी है, वो सब खत्म हो गए इसमें। अमुक ये आब जनाब बिल्कुल घरों में इस्तेमाल करा वनस अत मज पटरित टोटल या यूत गंद यह आब। करा गवर्नर सबस बिल्कुल इल्तिजा यह चूँकि सह दिन ये कुन तवज्जो, यह दिन जेल, यह दिन बंड, फिशरी महकमस दिन, चूँकि करो याद तुजर शरीफ टूरिज्म सिस्टमस मज यह बादशाह पान गोस गन तम फायदे सारी गामस, मगर जनाब सोन यह कत बोजन खतर तैयार आसा कहीं वनान सारी अमल पे गसान। जम्मू की 2 कश्मीरी पंडित लड़कियों ने नेशनल डांस मुकाबले में हिस्सा लेते हुए अवार्ड जीत लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में रक्स का कौमी मुकाबला मुनक्किद हुआ था। आवा प्याका और विधिधर अपनी कारकर्दगी से मुतमईन और एजाज़ मिलने से खुश हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन के सर बांधा। उन्होंने बताया कि हौसला अफजाई करने के साथ उनके माँ बाप ने रक्स के ताल्लुक से माहिरीन से रहनुमाई लेने का उन्हें मौका फराहम किया।
قومی ایوارڈ یافتہ ودھی دھر نے بتایا کہ اس پر بچپن سے ہی رقص کی دھن سوار تھی۔ ودھی دھر کہتی ہیں کہ تعلیم جاری رہنے کے باوجود یہ فن شوق اور پڑھائی کے بیچ توازن رکھنے کا جذبہ فراہم کرتا ہے۔ گھر والوں نے تو مجھے، میرے پیرنٹس نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اگر وہ نہیں مجھے سپورٹ کرتے تو میں اپنے ڈانس انسٹیٹیوٹ نہیں جا پاتی۔ ان کی وجہ سے ہی مجھے یہ پلیٹ فارم ملا ہے، انہی کی ہی سپورٹ سے میں اس قابل بنی ہوں، کیونکہ جب اگر پیرنٹ سپورٹ نہیں کرتے بچوں کو تو وہ بچے کچھ نہیں کر پاتے، تو اس پہ پیرنٹس کا میرا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ Qualified the district level of dance, so after that I was qualified for the national dance level, so I was very much excited and overwhelmed ki I got this opportunity to perform there. So I'm very happy and like grateful ki mere parents ne mujhe itna support kiya itni level pe pahunchne ke liye, and I finally won it, and I'm happy to share this moment. 1989 میں لداخ ہل کاؤنسل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 3 نوجوانوں کی یاد میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ٹپ ٹاپ سپورٹس اور کلچرل ویلفیئر سوسائٹی لیہ نے 25واں NDS کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کرایا۔ مختلف علاقوں سے 25 ٹیمیں شامل ہو رہی ہیں۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھپسان سیوانگ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ NDS ٹورنامنٹ نوانگ، دورجے اینڈ ستوپدن، یہ 3 جو یوا تھے وہ 89 کے ایجیٹیشن میں انہوں نے اپنے جان کی قربانی دی لداخ کے لیے، جس کے بدولت جا کے کافی سالوں کے بعد ہمیں ہل کاؤنسل ملا، اس کے بعد UT ملا۔ تو ان 3 شہیدوں کے نام پہ یہ ٹورنامنٹ NDS نوانگ دورجے ستوپدن ٹورنامنٹ بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارا سوسائٹی اس شہیدوں کے نام پہ یہ آرگنائز کر کے 25 سال ہو گئے۔ بیساکھی کی مناسبت سے سیموہ ترال کے تاریخی گرودوارے جھنڈا صاحب میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ترال کے مختلف دیہات سے آئے سکھ عقیدت مندوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ یہ علاقہ مذہبی بھائی چارے کا گہوارہ بھی رہا ہے۔ اس تہوار پر مقامی مسلمان بھی سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرنے آتے ہیں۔ سٹینڈر کونسل کے سربراہ فاروق ترالی نے گرودوارے میں حاضری دی اور سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی۔ BJP ترجمان الطاف ٹھاکر نے بھی گرودوارے میں حاضری دی۔ انہوں نے نئے گرودوارے کی تعمیر کے لیے 50,000 کی نقدی رقم بطور عطیہ دی۔ DDC ممبر ڈاکٹر ہرش بخش سنگھ اور DDC ممبر اوتار سنگھ نے بھی گرودوارے میں حاضری دی۔ ہمارا بھائی چارہ رہا ہے، خصوصاً میں ترال سب ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو یہ ہمیشہ ہمارے سردار پنتھ سے جو لوگ ہیں ہمارے ہمیشہ سکھ دکھ میں ساتھ رہے ہیں، چاہے نامساعد حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، تو ہم مسلمانوں نے بھی ان کو اپنی طرف سے ہر سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہاں مسلمان اور سکھ ہمیشہ صدیوں سے ایک ساتھ رہے، اور یہی پرارتھنا ہے کہ صدیوں تک ایک ساتھ رہے، اور جو نفرت پھیلانے والے جو عناصر اب اس سوسائٹی میں کہیں کہیں پیدا ہو گئے، ان کی اس نفرت کو ہمیں نکارنا ہے، اس نفرت کو ہمیں پیچھا کرنا، اور ایک بھائی چارے کا جو سبق ہے وہ مل کے مسلمہ اور سکھ ان کو آگے اس کو بڑھانا ہے۔ ہمارا پیغام یہی ہوگا کہ ہمارا آپس میں بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو نعرہ ہے وہ قائم اور دائم رہے اور خوشحالی آئے، کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں کشمیر بے حال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گرو سے، گرو گرنتھ صاحب جی سے التجا کریں گے، دعا کریں گے کہ اس خوشحالی کو واپس لوٹائے۔ یہ صوفیوں سنتوں کی دھرتی ہے، یہاں بھی سنت منگل سنگھ جی آئے تھے تو انہوں نے یہ گردوارہ سب، تو یہ جو گردوارے ہوتے ہیں یہ ایک سمجھو ایک پیس کا پیغام دیتے ہیں۔ ایک ہندو بھی آتا ہے، سکھ تو ہوتا ہی ہے، مسلمان بھی آتا ہے، ہر کوئی گردوارے میں آتا ہے، تو اس کی ایک مہانتا ہے۔ آج کا جو اس وقت پٹن سے ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ گوشابک پٹن میں ملیٹنٹوں کا حملہ، BJP سرپنچ منظور احمد بنگرو پر حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، BJP سرپنچ منظور احمد پر حملہ ہوا ہے۔ حملے میں منظور کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ابھی تک جو ہمیں خبر ملی ہے، گوشابک پٹن میں ملیٹنٹوں نے حملہ کیا ہے۔ BJP سرپنچ منظور احمد پر یہ حملہ ہوا ہے اور حملے میں منظور کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آپ کو بتا دیں گوشابک پٹن میں ملیٹنٹوں نے حملہ کر دیا ہے۔ BJP سرپنچ منظور احمد پر یہ حملہ ہوا ہے۔ حملے میں منظور کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ملیٹنٹوں نے ایک بار پھر اپنی
मौजूदगी का एहसास गोशाबुकपट्टन में कराया है और बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद पर मिलिटेंटों ने यह हमला किया। हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर आई है। आपको बता दें, बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर गोशाबुकपट्टन में मिलिटेंटों ने हमला किया। हमले में मंजूर के हलाक होने की खबर है। तो बीजेपी के एक और सरपंच मंजूर अहमद पर मिलिटेंटों ने गोशाबुकपट्टन में हमला किया है और हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर है। एक बार फिर आपको बता दें कि गोशाबुकपट्टन में मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है। लगातार सरपंच निशाना बन रहे हैं। बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर हमला किया गया है। गोशाबुकपट्टन में हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर है। हालांकि लगातार कई दिनों से ये खबर चल रही है कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट हमला करते हुए आम लोगों के साथ साथ सियासी लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। और अब ये खबर है गोशाबुकपट्टन से मिलिटेंटों ने बीजेपी के सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर हमला किया है। हमले में मंजूर के हलाक होने की खबर है। और आगे बढ़ेंगे। सिख बिरादरी ने आज गुरुद्वारा छठी बादशाही शादीमार्ग पुलवामा में बैसाखी का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया। हर साल बैसाखी के दूसरे रोज शादीमार्ग पुलवामा के इस गुरुद्वारे में मेला लगता है। आज 2 बरस के बाद यहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सिख अक़ीदतमंदों ने हाजिरी दी। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी गुलाम जिलानी ने भी गुरुद्वारे में हाजिरी दी और सिखों को मुबारकबाद दी। बेरवा में नए तामीर करदा गुरुद्वारे में बैसाखी का त्यौहार बड़े ही अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। हजारों की तादाद में सिख अक़ीदतमंदों ने यहां हाजिरी दी। इस मौके पर मुसलमानों ने भी सिखों को मुबारकबाद पेश की। गुरुद्वारा में खुसूसी पाठ का भी एहतमाम किया गया। मुकर्रिरीन ने इस त्यौहार पर रोशनी डाली। खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। 14 को अपने अपने घरों मनाते हैं। 15 वाले दिन जैसे आज भीरवा में हमारा है, इस दिन गैर मुस्लिम भी हमारे साथ आकर, गैर सिख जो है वो भी हमारे साथ आकर यहाँ पर बैसाखी के त्यौहार में शमूलियत करते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं और हम भी उनको नेक दुआएं देते हैं। यही तो एक अमलगम है बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और सूफीज़्म का, जिस पे हमें नाज है, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं। आज मैं ये दुआ भी करना चाहूँगा यहाँ पे कि आए दिन यहाँ पे अमन आए और हम इसी तरह भाईचारे से एक साथ हर एक त्यौहार को मनाएं। आज हमारा बैसाखी है, 300 साल बैसाखी तो हमारे को ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने बख्शी है। यहाँ पर लंगर भी था, हम सारे बच्चों ने खेला वेला, तो पाठ भी पढ़ा। मेरे मुसलमान फ्रेंड भी आए, उन्होंने मेरे को मुबारक दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिला पुंछ के दही इलाके रंगाली में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा डेरा संत पूरा साहब में 3 साल बाद बैसाखी का त्यौहार अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। यह गुरुद्वारा 300 साल से भी कदीम और रियासत में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। डेरा के महंत संत भाई मंजीत सिंह की रहनुमाई में हजारों की तादाद में सिखों और दीगर मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। लंगर का एहतमाम भी किया गया। सिख मजहब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। किश्तवाड़ पुलिस ने बैसाखी के मौके पर रेसलिंग मुकाबले का एहतमाम किया। रेसलिंग कमेटी के इश्तराक से इसका इनकाद किया गया। चौगाम मैदान में मुनक्किदा मुकाबले में 5 से ज़्यादा मैच खेले गए। खासी तादाद में लोगों ने इस मुकाबले का मजा लिया। एसएसपी किश्तवाड़ ने खेल कूद के मुकाबलों के इनकाद की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जिस्मानी व जहनी नशोनुमा के अलावा ऐसे मुकाबलों से समाजी बुराइयों से भी नौजवान दूर रहते हैं।